our chapter is squares and square root. Right? The things that we will start to learn in this chapter, the first thing that we will learn today, and today we won't be doing any mathematics, we will be only learning techniques today. Prime factorization. As much as Gyan we will take up so that we are able to start the chapter. Prime factorization. Okay. We'll learn what is prime factorization. This you will need even in higher classes also. Prime factorization, a number will be given to you and you have to factorize it using prime numbers. Okay? So Advait darling, please sit straight. You're sitting like that, you know what happens to me. Eerie comes to me. So prime factorization will take a number and we will factorize it as much as possible with prime numbers. So let us understand. So let's say I take a number 8. Okay. All your duty here will be you have to think yourself like a Dracula out here. And your job is to suck out blood. How do we suck out blood? So what are the prime numbers? 2, 3, 5. So we always start with 2 because this is an even number. So this will be divisible by 2, right? So I take 2 here and 2 4 times is how much? 8. Man mein karna padega. I get a number 4, which is again, I can further become Dracula with this number. 2 times is 4. Then again, I can suck out 2 from here. 2 1 times is 2. So you don't have to go for the last 2. No, you have to do it for the last 2. This is prime factor. This is not LCM that you are doing. Okay. See, again, the idea is don't go by what hygiene who is using. You try to take it. In that case, there is a chance of a miss out. Try to do it in this manner. So what do we say? We say 8 when we factorize it prime. The prime factorization is 2 into 2 into 2. What does this mean to us? This means, is anyone from here actually doing any chat on Teams right now? No, right? Ekaksh, are you sending some chat request or what on Teams? No, so somebody else, because a lot of chat requests are coming. Okay, 8 is 2 into 2 into 2. The beauty of this process is that when you prime factorize the numbers, you should not get any numbers other than prime numbers out here. मेरी बात को ध्यान से सुनिए. जो नंबर दिया रहेगा उसको प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करेंगे और प्राइम नंबर से फैक्टराइज करने के बाद जैसे यहां कोई 6 नहीं रह सकता है. बात समझ में आ रहा है आपको? यू आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में ही दिखने चाहिए. जैसे एक नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए वी हैव टेकन अ नंबर व्हिच इज से 15. ठीक है, 15 को हम ट्राई करते हैं. 2 से तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली 3 से जाएगा. सो 3 5 टाइम्स इज 15 and then you take 5 1 times. So 15 का prime factorization is 3 into 5. Are 3 and 5 both prime numbers? Yes. शुरुआत में ही इसको 5 से मत कीजिए. आंसर सही आएगा, but the procedure is wrong. You should start with the smallest prime number. See, I could have done with 5 also. I would have got a 3 and the next step I can do with 3. I can write 15 as 5 into 3 and you may argue, sir, मैंने तो commutation दिखा दिया है, commutative property. वो procedure नहीं है, right? Sweet dish पहले नहीं आता है, वो बाद में आएगा. पहले dessert आएगा. It's like that. Let's take some other number. Let's say we take a number which is 28. 28 जैसा एक number लेते हैं. The idea is not to test your skills. The idea is whether we are going by the right process. 28 देखते ही मुझे लगता है मैं इसको 7 से भी कर सकता हूँ. 7 4 28. लेकिन पहले 7 नहीं, पहले हम 2 से ही करेंगे. 2 से करेंगे तो 14 आ गया और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 7 आ गया. Now once you have got a 7, 7 is a prime number. 7 1 times is 7. तो यहाँ पे हम कहते हैं 28 is equal to 2 times 7. This is the prime factorization of 28. मतलब 28 के रायता को पूरा इस तरह से फैलाइए कि सारे आपको क्या देखने चाहिए? प्राइम नंबर्स दिखने चाहिए. Have you understood? ठीक है. आइए एक मजेदार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं. A good one, a really enjoyable prime factorization we will do, and let's see if anyone can identify what we are trying to do here. Okay, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे एक नंबर का, and this number is 1024. हाँ, so 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. आइए 2 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? Now see, this is your test how good you are with computers.
How good you are with computers? 1024 is actually a 1 TB memory disk. The lower than 1 TB, how much you get? 512 MB. इसका prime factorization करने से कितना आएगा? 512. The 1 TB which you say 1 terabyte actually has 1024 bytes. इसका half हार्ड डिस्क 512, इसका हाफ 256 GB. वेरी गुड. इसका हाफ हो गया 256, इसका हाफ होगा 128 GB. Okay, so listen, 128 GB. Now see, people are so crazy for 1 TB, 2 TB, 10 TB. So I'm telling you a story of 2006. 2006, I used to work in Australia in Brisbane. So during the Christmas day in Australia, there's something called Boxing Day sale. So Boxing Day sale means you have to wait outside the shop and the shop will just open. You have to rush inside. Whatever you get, you grab it. They will be all at throwaway prices. I was applauded by all. I was so lucky. I got a 128 GB hard disk. Means 128 GB those days was like, wow, उसके पास 128 GB है. I still have it with me. आजकल 128 GB comes in a memory stick. Okay. तो इसका कितना हो जाएगा? 64. 64 से नीचे कितना होगा? 32 GB रैम, उसके बाद 16 GB रैम, उसके बाद 8 GB रैम, उसके बाद 4 GB रैम, उसके बाद 2 GB रैम, उसके बाद रैम चोरी हो गया. रैम है ही नहीं, है ना? कितने टूज आ गए जरा देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Have you understood? So I think you have by now understood what is prime factorization. Anyone has any doubt with prime factorization as of now? किसी को भी कोई डाउट है with prime factorization? सिर्फ आपको ये याद रखना है, number should be divided with prime numbers. Now in your school they will start initially playing games with you. कैसे गेम खेलेगा? They will not give a number which will be easily divisible. What are the prime numbers you will try maximum? 2 3 5 7 11 13. वो 19 या 23 से पहला divisible number लाएगा. Are you getting it? Like 23 into 23 करके डाल देगा एक नंबर और पूरे टेस्ट में आप so whenever it's not going with 2 3 7 and all, na, imagine that you have been tricked, and when you are tricked, try to go for the higher numbers. 11 13 17 19 23 27 29. ये सब ट्राई करना करते हैं कभी कभी स्कूल में. ठीक है, तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं अभी कि as we have started like Delhi Metro, पहला स्टेशन प्राइम फैक्टराइजेशन, दरवाजे बाईं तरफ खुल रही है. क्या यहां तक आपको समझ में आया? Anyone who would like to get off this station that I have not understood? No. Hey, Ekak, समझ में आया? Prime factorization, have you understood? Can we close doors? Hi, great, yeah. Can we close the doors now? दरवाजे बंद किए जाते हैं. अगला स्टेशन परफेक्ट स्क्वायर. Our next station is perfect square. प्लेटफॉर्म बाईं तरफ आएगी, दरवाजे से हटकर खड़े हो. आइए परफेक्ट स्क्वायर सीखते हैं क्या होता है. परफेक्ट स्क्वायर दो शब्दों से बना हुआ है. एक है स्क्वायर which is a noun and the other word is what? Adjective. Adjective वो होता है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है. What boy? Naughty boy. So कैसा लड़का? गंदा बच्चा. ठीक है. विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है. कैसा बालक? पढ़ाकू बालक. कैसी बालिका? पढ़ाकू बालिका. कैसा बालक? उद्यंड बालक. तो उद्यंड क्या हो गया? विशेषण. तो ऐसे में दो शब्द सीखते हैं. तो पहला शब्द सीखते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर कहां से आया? अगर आप एक स्क्वायर को देखो तो उसके दोनों साइड सेम होते हैं. ऑब्वियसली अ स्क्वायर इज अ closed figure whose two sides are equal. सर्वेश ओके ना? अभी able to understand. All four से मतलब two sides equal, बाकी two sides are all four sides are equal. तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी एक नंबर से a is a number, आप इसको फिर a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. a multiplied by a. और अगर आप पिछले चैप्टर में जाएं एक्सपोनेंट्स में तो a अपने साथ अपना बिंदी लाया है 1 और ये भी है 1, and as per laws it is a to the power 1 plus 1, जिसे हम लिखते हैं a squared. ये तो आपको पता है. ठीक है ना? आइए एक और नंबर लेते हैं इसकी जगह पे. अगर आप 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16. समझ में आया? तो इसको हम क्या लिखते हैं? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो हम क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर इज 16. 4 का स्क्वायर. मगनलाल जी का बेटा है रमेश,
अब उल्टा बोलो तो रमेश के पिताजी हैं मगनलाल, आज हम वो सीखेंगे। 16 और 4 का क्या रिलेशन है? 4 का स्क्वायर है 16 और फिर हम कहते हैं 16 का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लिखने का टेक्निक ऐसा, ऐसा छोटा सा v बना के लंबा करेंगे और ऐसे लिखेंगे। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। मगनलाल जी का बेटा रमेश, रमेश के पिताजी मगनलाल। समझ में आया? उल्टा करके लिखना। अब एक्चुअली अगर आप बोलो तो ये जो है ना, इसको हम रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट नहीं कहते। ये वाला जो सिंबल है ना, ये सिंबल एक्चुअली है रूट। अगर आप करेक्ट मैथमेटिक्स में देखेंगे, स्क्वायर रूट बोले तो यहां 2 बिठाना चाहिए, लेकिन हमारे घरों में जो भी नूडल्स हम खाते हैं वो है मैगी, और जो भी डिटर्जेंट से कपड़ा धोते हैं वो क्या है? सर्फ, है ना? वो सर्फ है, सर्फ से धो दो, मैगी खिला दो। तो 2 हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं। सो व्हेनेवर इट इज रिटन विदाउट अ 2 इट इज टू बड़ा। ए एकाक्ष, one thing upfront I'm saying, you will have problem। आपको ना, I'm seeing that difficulty in you। Next class you get a dining table chair or whatever, sit in a chair। After sometimes what will happen, you know, you play, that's why your back will demand rest। आप थोड़ी देर बाद बिस्तर में लेटोगे, ऐसे लेटोगे, और तब मैं जब देखता हूं ना, मुझे सुस्ती आना शुरू होता है। ऐसा नहीं। If you see, because बच्चा you are in Pune ना, so you will always attend online, whether with me, whomever। To attend online, we need 3 things: a high-speed internet connection, which you have; a good computer device with camera, which you have; and third is posture। If your posture is wrong, you are gone। Posture means अभी ऐसे आप नहीं बैठ पाओगे, because you are sitting on a stool। आप ऐसे जैसे बैठोगे ना, या बेड में आप बैठे हो, तो आपको थोड़ी देर बाद ही क्या होगा? पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, which is not with you, with anyone। So get into, or you can shift to a dining table, whatever। Get into a place where you have a table and a chair। मैंडेटरी बेटा, अदरवाइज बैक पेन आना शुरू होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। व्हाट डू वी कॉल इट? स्क्वायर रूट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे, व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस, 16 का स्क्वायर रूट है 4। इसका मतलब क्या होता है? 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना मिलना चाहिए? 16। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मैंने -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी कितना मिलना चाहिए? 16 ही मिलना चाहिए। तो आप इतना स्टेप मदरली सिर्फ इसको 4 क्यों बोल रहे हो? क्या 16 का रूट -4 नहीं है? है। तो 16 का एक्चुअल रूट होता है +-4। लेकिन अभी आप लोग वो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सीख रहे हो। सो व्हेनेवर वी गो बाय द रूट, it is understood that you are considering only the positive root। But nobody stops you. If you write this, you are super correct. But at this age, we believe, what is the square root of 9? 3? No, +-3. A -3 squared is also 9. And a 3 squared is also 9. Do you get it? So, any number square root is always +-. But for the case of simplicity, as we will be studying this chapter, we will take square roots only the positive square roots। Have you understood a bit of square root? This chapter will be all about to understand how to find square root of big numbers, decimal numbers, fraction numbers। We will learn different techniques, and 1 or 2 technique you have to remember। और वो थोड़े से clumsy है, उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बात थी कि हम क्या सीख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर सीख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? मैंने पूछा, बेटा मुझे ये बताओ 6 का रूट क्या है? 6 के रूट बिल्कुल है। कैलकुलेटर दबाइए। आप कहते हैं 6 के रूट नहीं है, 6 के जबरदस्त रूट है। 6 का रूट अगर मारो 2.4449। अच्छा, एक और बात आता है, जैसे √2 होता है 1.414। ठीक है, जैसे √3 हो गया, √3 इज 1.732। आप जरा चेक कीजिए तो इसमें और इस टाइप के रूट्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस यू आर सेइंग? इसमें you are getting a whole number। Okay, we are getting a whole number, or you can rather say we are getting an integer। We're getting an integer. Here you are not getting an integer, right? So those numbers whose square roots yield you integers are known as perfect squares। इनका perfect square बनता है। So what is a perfect square?
A perfect square is a number n such that if you do its root, you always get a plus minus integer z, and we will say this z is generally not equal to 0. 0 का कोई हम लेते नहीं है. It is always the integer, plus minus an integer. Have you understood? But don't go so much. इतना भी दिमाग में मत घुसाओ, सीधा ऐसे ही सोचो. रूट करने के बाद, सिंस वी आर डीलिंग ओनली विद द पॉजिटिव्स, हम लोग क्या बोलेंगे, रूट करने के बाद कोई नेचुरल नंबर मिला तुम्हें, जीरो तो देखते नहीं है, क्योंकि जीरो का रूट कोई देखता नहीं है. इट्स फुलिशनेस टू हंट रूट ऑफ जीरो. तो अगर कोई नंबर, जैसे एक नंबर ले लो 64, रूट करो उसका, कितना आया 8, नेचुरल नंबर है. 100 का रूट क्या, कितना आया 10. श्रेयस समझ में आ रहा है? तो 11 का रूट क्या, डेसिमल में आ गया. और जब 121 का रूट क्या, हमें कितना मिला, 121 का रूट है 11. हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है. सो यू सेड 10 both of you. अच्छा, no, second time I think you said 11. So anyways, all understood. Have you guys understood what are perfect squares? Perfect squares are numbers whose square root will yield you a natural number if you are thinking about the positive square root, and if you want to holistically look at it, it should yield you an integer. ठीक है? अब जरा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग करने के लिए ये सब आपको हेल्प करेगा. 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हमें दिखते हैं, जरा टेस्ट करते हैं. एक 1 खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. 1 के बाद शायद 4 आ जाएगा, 4 के बाद शायद 9 आ जाएगा. अब आप ऐसे मत ढूंढो. कैसे ढूंढो? 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर्स देखना सोचो, वो ज्यादा इजी है. ये 3 स्क्वायर हो गया. 4 स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 49, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर. ये 1 से 100 के परफेक्ट स्क्वायर है. It was foolishness to find it like this. See, this is what I'm saying. मतलब एक ही चीज को दो नजर से हम देख सकते हैं. You fill a glass half with water, the glass is half full. You can also say the glass is half empty. So an optimist person, optimist who is, किसको optimist बोलते हैं, जिसे हर चीज में पॉजिटिव दिखाई देता है. Optimist will say the glass is half full, and pessimist will say the glass is half empty, क्योंकि उसे सब निगेटिव दिखता है. And what does a chemist say? Chemist, the glass is half filled with water and half with air. That's how a chemist will say. Chemist will say the glass is half filled with water and half filled with air. देखने का नजरिया. तो इसको हम पहले गधे की टेक्निक से देख रहे थे, फिर हमने जब बुद्धि लगाई तो देखा नंबर्स ढूंढना ज्यादा आसान है 1 2 3 4 करके ढूंढे तो. ठीक है, अभी हम आगे जा सकते हैं. अगर आप 11 का देखेंगे कितना होगा, 12 का देखेंगे 144, 169, 196, 250, 225, फिर 256, उसके बाद 17, 49, 289. वेरी गुड. इसके बाद मुझे भी नहीं पता, पर मुझे पता है 400, वो मैंने ले लिया. तुम लोग नहीं बोल सकते, मैंने पहले बोल दिया. 18 और 19 आप देख लेना जितना होता है. ठीक है, have you understood? So can I now say, going in my journey, can I say that the understanding concept of perfect square, the understanding part of perfect square, can I put a tick on it? हमने समझ लिया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. तो क्या क्या सीखा? प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, परफेक्ट स्क्वायर सीखा. अब हमें सीखना है गंदा बच्चा क्या है, सीख लिया. अब बच्चा गंदा है कि नहीं वो कैसे ढूंढते हैं वो सीखेंगे. गंदा बच्चा सीख लिया, अच्छा बच्चा सीख लिया. अब अच्छा बच्चा अच्छा क्यों है, शेष तू दुखी क्यों है, मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूं. और गंदा बच्चा गंदा क्यों है, उसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट, टू टेस्ट, टू चेक if a given number is a perfect square or not. ये होता है प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. चेक करेंगे कि दिया हुआ नंबर या संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. इस विधि को करने के लिए पहले गैस ऑन कीजिए और अपना मनपसंद नंबर को कढ़ाई पे लगाइए. जो भी नंबर है, हमारा नंबर है 144 ट्रायल के लिए. अच्छा 256, बच्चे मन के सच्चे, तो चलो 256 को ले लिया जाए, नहीं तो बच्चा रोएगा. 256 हमारा नंबर है. समझ में आया? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. 256 इज आवर नंबर. ठीक है, इसके बाद इसे धीमी आंच पे
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। धीमी आंच में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। कर लें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आ जा बच्चा, कितना है नंबर? 256। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 2, 2 एकम 2। हो गया। मैं तो गाना गा के कर लिया। ए रैन, तुम्हारे पेज को चोट लग रहा है क्या लिखने से? इतने बेबी बेबी जैसे लिख रहे हो, फटाफट लिखो। लगे टॉर्टोइस नाउ, और नहीं तो क्या? As if the page will get hurt. Book is a non-living thing. If you write on it, it doesn't scream. ठीक है? Sir, technically paper is because paper. तो देखा रेस्टलेस होना शुरू हो गया वो, Sir, जस्ट बिकॉज इसके बेड पे बैठा है ना, पीठ में दर्द हो जाता है, पीछे जाता है, सामने जाता है, अभी टी शर्ट को मुंह में पहन रहा है, ऐसा ही इज गेटिंग रेस्टलेस। पहले वो क्या करता था, यूट्यूब में वीडियो देखता था, दैट वीडियो इज इन हिज कंट्रोल, व्हेनेवर ही वांट्स ही कैन स्टॉप इट। राइट नाउ ही इज वाचिंग अ लाइव मैच ना, नाउ तो इट इज नॉट इन हिज कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब अटेंशन डिसऑर्डर है उसको। चले, हाँ, पेपर क्या लिविंग थिंग है? तेरे को रात में सपना आता है, गला घोटा था तेरा पेपर ने? because paper comes from wood and wood is. तो कल से गोभी मत खाना, जब गोभी खाते हो ना गोभी चीखता है, मत काटो मुझे, ठीक है? गोभी मत खाओ। चल आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने। अब इस नंबर के थर्ड राइट द डिटेल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट द डिटेल प्राइम फैक्टराइजेशन। सो डिटेल प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां पे ही गलती करोगे या बच्चा, यहां पे गलती करोगे। कितने हैं? एकम, दोम, तीनम, चारम, पांचम, छयम, सातम, आठम। एकम, दोम, तीनम, चारम, पांचम, छयम, सातम, आठम, 8 लिख लिया। चौथा सबसे इंटरेस्टिंग, वाओ, इसका गर्लफ्रेंड्स ढूंढिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पेयर्स ढूंढिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढना है अभी आपको। आहा 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 आहा, क्या मिला आपको? पेयर्स मिले। ठीक है, लुक फॉर पेयर्स। और जब आप लुक फॉर पेयर करोगे तब आपके पास दो हो सकता है, या तो मेरी किस्मत जागी या मेरी किस्मत फूटी। मतलब आपको पेयर मिल भी सकता है, पेयर नहीं भी मिल सकता है। जहां पेयर मिला, डिक्लेयर, कंप्यूटर जैसा बना रहे हैं आपको, डिक्लेयर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर मिल गया ना तो गिवन नंबर क्या हो गया बेटा? परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर पेयर नहीं मिलेगा तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बड़ा इजी है। तो फिर से देख लेते हैं। पहले कढ़ाई लगा के गैस के ऊपर दिए हुए नंबर को हल्की आंच में तलिए। कैसे? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और विस्तृत रूप में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को बोर्ड पे लिख लीजिए। फिर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप जोड़े ढूंढिए, पेयर। जोड़े ढूंढते ढूंढते अगर आपको पेयर्स मिलते ही गए सारे नंबर्स, तो फिर आपका दिया हुआ नंबर एक प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल? ठीक है ना, आई हैव टू टॉक टू हिज मदर टुडे। चंचल मन बालक है। आइए एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमने 96 एक नंबर लिया, ठीक है। आइए 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 8 8 या 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 एकम 3। समझ में आया? आइए 96 को लिखने की कोशिश करते हैं भाई साहब। 96 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टूज है, 5 टूज है और 1 3 है। अब आप बनाइए इसका पेयर। ट्याओ ट्याओ, उसके बाद लफड़ा हो गया। ना तो 2 के पास एक और 2 है, ना तो 3 के पास एक और 3 है। तो ये नंबर आप क्या बोलेंगे? गिवन नंबर 96 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ट्राउ
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? Hey, you are not writing anything. You are going on listening. Where is your notebook, Akash? So write, na. That is for what? Making girlfriend's photo or what? Then, where have you written? Where did we do? All this that I have done, so many screens I have written. Have you? Where is your pen? I only see you pulling out t-shirt, folding legs, lying on the bed. कहाँ लिखियो? लिखो. दादी माँ की कहानी थोड़ी हो रही है, अब बैठ के सुन रहे हो. हाँ, अब शेर आया था उस दिन. Yeah. What happened, beta? Acha, tell me, are you joining through a laptop or a tablet? That is another problem. You should join actually. Well, see, online means you should have a big monitor and you should have a laptop. Hey. You need a tablet. एक तो tablet लगा के इतना दूर जाके बैठे हो, आपको कैसे होगा? नहीं, आज तो बात करना ही होगा. You need to have gadgets. Have you understood this? When a number is a perfect square or not a perfect square? Very good. Yeah. No, that you leave to me now. How you will join today? I will do all the talk with your mom. Don't worry. I'll do everything. Okay. Okay. So are we fine with whether a number is perfect square or not? Have you understood? Right. So if you have understood that, then the next part of the problem, नहीं स्क्वायर रूट अभी आएगा ही नहीं, अभी और एक है, इसके बाद प्रॉब्लम्स करने हैं हमें. नेक्स्ट पार्ट इज which is actually the type of problems that you will get. You will be given a number, है ना? The type of problem will be you will be given a number and they will check, the question will be check whether it is a perfect square. So your answer will be either the number will be a perfect square or it will be not a perfect square. If it is not a perfect square, then they will ask you what should be the number be multiplied or divided to make it a perfect square. And then they will ask you the new perfect square. मतलब अभी हम क्या सीखेंगे, ये वाला पार्ट तो हम सीख चुके हैं. हम क्या सीखेंगे अभी? हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 96 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं. और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने के लिए या तो हम उस नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कुछ डिवाइड करेंगे. इज इट गेटिंग रेडी विथ यू? सीखिए अभी उस टेक्निक को. आइए चलिए एक नंबर लेते हैं, जैसे एक सिंपल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 96 ही लेते हैं. ठीक है, 96 के साथ ही खेलते हैं फिर से. तो 96 में हमें क्या मिला था? 248, 224, 212, 26 and 23 and 3 ones are 3. So अगर हम 96 को खोल के लिखें तो इट इज 2 into 2, 2 into 2, एक और पेयर, इसके बाद एक 2 अकेला, इसके बाद एक 3 अकेला. Have you understood? Now suppose the question is that 96 is not a perfect square because we are not getting pair out here. Now they're asking us what is the smallest number with which 96 should be multiplied so that it becomes a perfect square. तो इसको perfect square बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इधर एक 2 लाना पड़ेगा और इधर एक 3 भी लाना पड़ेगा. तो आपने एडिशनल क्या लाया? आप ये नंबर बाहर से लाए, ये नंबर बाहर से लाए. ये था 2 और ये था 3. ओवरऑल ये कितना नंबर है? 6. So 6 is the number which if you multiply here, then this becomes a perfect square. पर आप देखो, you can't write 96 equal to this. 96 can never be equal to this. 96 was equal to the numbers when 2 and 3 was not present. तो इसका मतलब 6 यहाँ भी multiply करना होगा. Then you get the new number which is a perfect square. आइए 6 into 6 कितना हो गया? 36. 3 carry over. 6 9 54 and 54 plus 3 is 57. So 576 is the perfect square. So how do we write these problems? इस प्रॉब्लम को लिखेंगे कैसे? आइए उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. How we write this problem? स्कूल में आप कैसे करेंगे?
नंबर वन आप पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे और लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स, since all the prime factors are not in pairs, फिर since तो छोटा भी लिखने से भी होता था तो फिर प्लग पॉइंट, therefore 96 is not a perfect square. This is the first step. It is not a perfect square. Now they're asking us, if it is not a perfect square, with what will you multiply 96 in order that it is a perfect square? So the second part we say, we multiply 96 with 2 into 3, the missing factors. ये 2 into 3 क्यों लिया आपने? आपको पसंद नहीं है इसलिए? ऐसे नहीं. We multiply it with 2 into 3. Why? ये missing factors थे, missing थे ना? 2 into 3 to make it a perfect square, which is equal to 96 into 2 into 3, which is equal to 576. So 576 is your new perfect square. Have you understood? Question. अच्छा, जब आपको बोलेगा कि आप मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर लाइए तो आपको हमेशा और बड़ा नंबर मिलेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सीधी सी बात. अब एक सवाल आता है कि डिवाइड करने से भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना. जैसे ये अकेले अकेले थे ना, 2 और 3 अकेला था, नाले में फेंक दो, इसको भी फेंक दो, तो आपके पास क्या बचा? पेयर पेयर. 4 4 16. समझ में आया? So we will say that 4 4 तो नहीं बोलेंगे, each for 2 2, so it is 8 8 8 64 and then 9 9 81. ठीक है ना? उसके बाद हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनता है. सो वी से आवर परफेक्ट स्क्वायर विल बी 576. सो अगर हमें डिवाइड करने का हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इफ इट इज सपोज टू बी डिवाइडेड देन वी से सपोज टू बी डिवाइडेड, वी डिवाइड 96 by 6 to make it a perfect square. And the 6 also you should write the non-write missing, you now write the unpaired factors. The unpaired factors. So let's see, 96 divided by 6. 6 ones are 6, 3 36, 6 are 36. So 16 is the perfect square after 96 has been divided by this. Have you understood this? Right? Very good. So what all we did understand so far? How to find prime factorization, number one. Then what is a perfect square? Then how to check whether a number is perfect square. If a number is not a perfect square, how to convert it a perfect square either by multiplication or by division. So now we are well set to get to our next topic for today. That will be how to find square root, and this is called the halwa. This is called the halwa process. What process? हलवा प्रोसेस. एकदम हलवा. और जलवा प्रोसेस इसके बाद आएगा. हाँ, उधर रोगे पूरा. ठीक है? ठीक है. आइए, कोई बात नहीं, सीखेंगे ना हम. हमारे साथ कुछ भी टॉर्चर नहीं, हमारे साथ सब श्रेयस जैसा है, हंसता हुआ बच्चा. कुछ नहीं है, उसको आराम से रखने का. ओ, he is the lion in the Roman Empire. He will sit beside the throne. Don't worry, he is a good boy. ठीक है. So square root. So square root निकालने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. The technique that we are going to learn first is the halwa technique, which is called the prime factorization. ठीक है. आइए, प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले एक स्क्वायर रूट वाला नंबर ही लेते हैं, जैसे 64. वी ऑल नो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रोसेस नंबर 1. स्टेप्स लिखिए मेरे साथ. पहले कढ़ाई में नंबर को लगाइए, धीमे आंच में नंबर को कढ़ाई में सजाइए. उसके बाद क्या है श्रेयस? नेक्स्ट, हल्के से प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस नंबर को धीमी आंच में भूनिए. प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस नंबर को धीमी आंच में भूनिए. इसके बाद क्या है? एक सुंदर सी ट्रे में सारे प्राइम फैक्टर्स को डिस्प्ले करके लिखिए. प्राइम फैक्टर्स को डिस्प्ले करके लिखिए. उसके बाद क्या है? उनमें जोड़ी ढूंढिए, मार्क पेयर्स. तो यहां तक का स्टेप कर लें पहले. आइए,
64, so 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो हमारा कौन सा स्टेप हो गया? नंबर वाला स्टेप हो चुका है। हमने किया डोरा द एक्सप्लोरर। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्प्ले। आइए 64 को उनके नंबरों पे डिस्प्ले करते हैं। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। हमने इन्हें प्राइम फैक्टर में भी डिस्प्ले किया। अब आप इसमें पेयर्स ढूंढिए। क्यों बैठे हो खाली? ढूंढो पेयर्स। हमने पेयर्स भी ढूंढ लिया। समझ में आया? अब अगला स्टेप, जहां हर बच्चा गड़बड़ करता है, हर बच्चा गड़बड़ करेगा, वो स्टेप क्या है? अगला स्टेप में सबसे पहले लिखिए, दिए हुए नंबर को इस रूप में लिखिए और इज इक्वल टू लिखिए। दिए हुए नंबर को, हमारा नंबर क्या है? 64। 64 को रूट में लिखिए और इज इक्वल टू लिखिए। समझ में आया? और जहां ऐसे हस्बैंड वाइफ कपल्स है, उनमें हम कैसे लिखते हैं? एक आदमी को ही बोल देते हैं ना, हमारे घर आज पार्टी में आ जाइए, आप भी आइए। इतना बोलने की जरूरत नहीं, एक को बोलने से हो जाता है। तो सिर्फ एक को बुलाएंगे, हर पेयर के लिए एक। शायद समझ रहा है? तो सिर्फ तेरे वाइफ को बुलाया जाएगा, तुझे नहीं बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है? हर पेयर के लिए एक, हर पेयर के लिए एक। समझ में आया? तो इसमें हम क्या लिखते हैं? 1 for a pair into as many factors, as many pairs। Did you understand? और फिर तो आपको मिल ही गया, यानी कि 64 का वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, मूल मतलब सॉल्यूशन हो गया 224228। बच्चे आपके स्कूल में क्या करेंगे पता है? वो नेक्स्ट टाइप नहीं, वो 64 लिख के लिखेगा 2 into 22। वो गलत है। 64 कभी 8 नहीं हो सकता है। 64 का रूट 8 होता है। मगनलाल जी मोहन नहीं बन सकते, उनका बेटा मोहन है। ओ बेटा, समझ में आया का? हाँ, दिमागों में घुस गया है जो कहा है तुमको। बहुत ही अच्छा। और एकांश मन पंछी की तरह उड़ रहा है ना, साइड बैल्कनी से उड़ रहा है, कभी खिड़की से उड़ रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है उसको, देखो। इसको आदत नहीं है 1 घंटा बैठने का। ही इज लाइक, ओह, तुम नेक्स्ट दिन से पॉपकॉर्न लाके बैठो क्लास में। दिस शोज हाउ डिस्ट्रैक्टेड यू आर इन योर डेली लाइफ। You cannot sit at a place for 1 hour. You're being tested. You should have, Sarvesh, you're missing it. You should have seen his pura, like, have you seen fly, housefly? Does it sit at a place for 1 minute? Moo, 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 moo. Yeah, so that. Look at our friend Advait. He can play video games for 48 hours. He can attend class for 48 hours, swiveling like a CEO of the company. Next time you will swivel, I will switch on that electric iron behind you, which is just behind you, right? And not look at you, but just pull down your shorts and pack, I'll give you. Did you understand? It's Hitler's torture. That is Hitler, I am Hitler. What I'll do, with complete respect to your privacy, I'll just heat up the, and to give you a little bit of comfort, if that is a steam iron, I'll first spray some water, pichik, and then set it down, chick. ये तो He-Man है, He-Man, right? And you'll get 2 stamps. जैसे 3 Idiot में देता है ना, वस्त्र उतारिए नहीं तो मूत्र भिजा। जैसे 3 Idiot का स्टैम्प। समझ में आया? Next time you think that you are swiveling, that I'll switch that on. I give live examples. I do not design my torture. My torture comes from what you're showing me only. फिर ऐसे ही चलते रहना। कैसे हैं अद्वैत? बहुत अच्छे हैं आजकल बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं आजकल। And then you know the pleasure is what? Neither you can sit nor you can sleep. Because you can't turn. Plus, our sir used to say, the injury is in such a place that you are grown up, you can show somebody also. So it is double trouble. Injury क्या हुआ बेटा, कहाँ लगा है, दिखाओ। नहीं लगा, नहीं लगा है, लगा ही नहीं है। ऐसे आंसर ठीक है। क्या आइटम, वाटर,
thing. With this, you can address everything. He will have pain. He can't show it to anyone. Neither he can say what happened. Oh, I was given 2 roasted garlic chicken. Okay. And next time you're sitting straight like a CEO, right? Chale phir. Shall we? Square root. Oh. Okay. Have you understood? So let's couple these problems. So you understood now how to get square roots. ठीक है? आपके स्कूल में कभी इतना मजा होता है? कभी नहीं हो सकता है. So अब चेक करते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा. Number 1, what did we learn? Just let us have a quick recap, children. Prime factorization, है ना? रैन तो इसके फ्रेंड्स को जानता है टाइम स्कूल में. बस YouTube में उतना वीडियो का मिनट क्लिप दे देने से हो गया. Sir was giving him some nice gift. Watch the video from this minute to this minute. है ना? Okay, number 2. Do we know prime factorization? We know. Okay, then do we know what are perfect squares? Just have a quick look and have a review. Do we know what are perfect squares? We know what are perfect squares. And number 3, do we know to detect a perfect square? Do we know this? We know this also. Can anyone tell me? Shreyas बोल दो कैसे डिटेक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पेयर्स ढूंढेंगे. अगर पेयर है तो परफेक्ट स्क्वायर है. मतलब यहां से 2 सवाल हमें आंसर मिल सकते हैं, यस और नो. अगर यस है तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं. अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे? 1 for a pair, 1 for a pair, and then you start multiplying. Yes or no? Understood this technique? Okay. If they are no, then they can give you again 2 type of problems. Convert to a perfect square, right? Convert to a perfect square देने के लिए भी 2 हो सकते हैं, by multiplication or by division, right? And then once you have converted into a perfect square, जैसे आपने convert कर लिया, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आपको दे सकता है इन दोनों के रास्ते से. After that, find the root of the new perfect square number. That is very easy because once you have made the perfect square, then you can again do pair, and then just calculate. क्या हुआ? अभी क्या इतना हंस रही है? ठीक है. So let's go. Yeah, बिट्टू बोलो बिट्टू. Tell me, बेटा. Outside. No, perfect. When perfect square was on, you were inside the class. At that time, you were doing all this. अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर से. All these you are doing. I am watching you ना. Then you are sitting, folding your legs. आ जाओ, कोई बात नहीं. So let's see what is a perfect square. ठीक है? बच्चे ने पूछा है, नया आया है, सब कुछ बोलना चाहिए उसको भी. वो सोचेगा सर YouTube में इतना अच्छा लगता है, आप रियल क्लास में इतना डोज देते हो. देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट करने से वी विल गेट आइदर एन इंटीजर और अ नेचुरल नंबर. ओके, लेट्स से 25. 25 का रूट क्या है? 5 and -5. But in this class we will not be worried about the negative roots. We will be worried only with the positive root. We will be worried only with the positive root. So perfect square वो नंबर है जिसको रूट करने से you get a whole number. Rather we'll say a natural number. ठीक है ना? Natural number आना चाहिए. अच्छा, very good. बेटा, I am very happy that you at least asked. Anyone has just look here. यहाँ तक किसी को कोई problem है? Any issues? No issues. So what I do? Don't open your books. I'm just writing few problems. We will see whether we are able to do them or not. Okay.